Hi everyone. So in this session we are going to discuss InMode 2024 problem 5. It was a geometry problem and I would say more than geometry it was more of an imagination. Geometry is more or less imagination. So let us see what the problem says and I think this was one of the most beautiful problems of this paper INMO 2024. So let us have a look at the problem and we are going to discuss this problem from the very basic कि किस तरीके से सोचना चाहिए था, what are the thought process involved, and we are going to discuss this from the very basic style so that it not only helps you if you're preparing for INMO 2025 or 2026 but also at the basic fundamental level, right? So let us have a look at the question. Let the points A1, A2, A3 lie on a circle tau in anti-clockwise order. Okay, so and let P be a point in the same plane. Okay, so we have 3 points A1, A2, A3. So A1, A2, A3 are the 3 points on a circle tau. So this circle is called tau. And let P be a point on the same plane. So P kahin pe bhi ek point hai. It can be inside the circle, inside the triangle, outside the triangle. So kahin pe bhi ek point मान लेते हैं P. Okay, so this point P can be anywhere on the plane. So for I is equal to 1, 2, 3, let tau I denote the counterclockwise rotation of the plane centered at AI, where the angle of rotation is equal to the angle at the vertex AI in triangle A1, A2, A3. So let's say angle A1 is A1, A1, A2, A3 का angle A1 है, A2 है और A3 है. So when I say tau I, so tau 1 का मतलब क्या है? This is rotation of rotation about A1 by an angle A1. ठीक है, एंड रोटेशन के ऊपर हमने काफी ज्यादा सेशंस किए हुए हैं, फॉर्मेट पॉइंट रोटेशन के ऊपर आयोक्यम में बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं. सो उससे काफी ज्यादा आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि रोटेशन का मतलब क्या है. सो tau 1 is rotation about A1 by an angle A1 counterclockwise. Right, so this is tau 1. Got it? Similarly, tau 2 is rotation about A2 by an angle A2 counterclockwise, and tau 3 rotation about A3 by an angle A3 counterclockwise. Define Pi to be a point tau I plus 2, tau I plus 1 P. Now this is quite complicated, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. But again, so हो क्या रहा है? Pi, so basically P1 is obtained. अगर मैं I को 1 पुट करूं, so tau 3 of tau 1 of tau 2 of P. So क्या मतलब है? पहले पॉइंट P को tau 2 मतलब A2 के अबाउट रोटेट किया, जो पॉइंट आया उसको A1 के अबाउट रोटेट किया, जो पॉइंट आया उसको A3 के अबाउट रोटेट किया, तो फाइनली हमें जो पॉइंट मिलेगा वो P1 मिलेगा. राइट, सो दिस इज P1. सिमिलरली P2 और P3. तो इसमें मतलब अंदर जाने का, डीप जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ वी आर एबल टू क्रैक वन थिंग, हम बाकी चीजें भी क्रैक कर लेंगे. राइट, सो दिस इज गुड एनफ फॉर अस. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि P1 क्या है. P1 इज काइंड ऑफ ट्रिपल रोटेशन अबाउट P. तो P का बेसिकली 3 बार रोटेशन, 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. वन इज पहली बार पॉइंट P को हम A2 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं बाय एंगल A2. जो पॉइंट आएगा उसको हम A1 के अबाउट रोटेट करेंगे बाय एंगल A1. जो पॉइंट आएगा उसको हम A3 के अबाउट रोटेट करेंगे बाय एंगल A3. सो जो फाइनली पॉइंट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी P1. राइट, सो सिमिलरली P2 एंड P3 इसी हिसाब से आएंगे. वेयर इंडिसेस आर टेकन मॉडुलो 3. सो अगेन यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि I को तुम अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे tau 4 हो जाएगा. सो ये बोल रहा है कि tau 4 इज सेम एज tau 1 एंड tau 5 इज सेम एज tau 2 एंड सो ऑन. ठीक है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3. सो P1, P2, P3 जो 3 पॉइंट्स आएंगे, मतलब P का P1, P2, P3 जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो ट्रायंगल बनेगा P1, P2, P3, उसका सर्कमसर्कल इज एट मोस्ट द रेडियस ऑफ टाउ. मतलब R of triangle P1, P2, P3 is less than or equal to R. ठीक है, so radius of the circumcircle of triangle P1, P2, P3 is less than the radius of triangle A1, A2, A3.
रेडियस ऑफ टाउ दैट इज रेडियस ऑफ ट्राइंगल A1 A2 A3 A1 A2 A3. सो हमें ये अल्टीमेटली फाइनली प्रूव करना है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन कि ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है. तो इसको बहुत ही डीपली समझते हैं, बहुत ही बेसिक से समझते हैं, राइट? सो देयर आर थ्री वर्टिसेस A1 A2 A3. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी गाइस, पहले तो सबसे पहले यहां पर यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रोटेशन इफेक्ट. रोटेशन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है? सो उठा लेते हैं कोई भी पॉइंट. लेट्स से ये पॉइंट है A1. हम टाउ 1 देखते हैं क्या होगा, ठीक है? तो पहले टाउ 1 देखते हैं और रोटेशन इफेक्ट इन चारों चीजों का देखते हैं कि पॉइंट का रोटेशन क्या होगा, क्या मतलब है, लाइन सेगमेंट का रोटेशन का क्या मतलब है, लाइन का व्हाट इज द मीनिंग, एंड सर्कल का रोटेशन का मतलब क्या है. सो जब मैं सिर्फ टाउ ऑफ अ पॉइंट, सो दिस इज A1, सो टाउ 1 इज बेसिकली रोटेशन इज हैपनिंग अबाउट द पॉइंट A1 एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट P. This is a point P. तो बेसिकली what is happening is इसके अबाउट मैं रोटेशन कर रहा हूं, A1 के अबाउट रोटेशन कर रहा हूं बाय एन एंगल A1 काउंटर क्लॉकवाइज. सो A1 क्या है? A1 इज दिस फिक्स्ड एंगल. ये A1 है, दिस इज A2 एंड दिस इज A3. और हमें पता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है? सो इसको मैं A1 लिख रहा हूं, इसको मैं A2 लिख रहा हूं एंड इसको मैं A3 लिख रहा हूं. गॉट इट? ठीक है? सो जब मैं पॉइंट P की बात करता हूं तो पॉइंट P क्या मतलब है? सो पॉइंट P का मतलब है कि पॉइंट P A1 से एंगल A1 से रोटेट हो गया काउंटर क्लॉकवाइज. तो ये P डैश बन गया, P डैश बन गया, राइट? सो एक पॉइंट से रोटेशन का मतलब ये है कि A1P हैज बिकम A1P डैश. ठीक है? सो दिस इज वन रोटेशन. बट बेसिकली मैं उस पॉइंट पे 3 रोटेशन कर रहा हूं. तो देखते हैं कि 3 रोटेशन के बाद एक पॉइंट का क्या हल होता है. सो A1 ये है, मान लेते हैं कि A2 यहां पर है कहीं. ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि A2 यहां पर है कहीं, A2. ठीक है? अब इस पॉइंट का मैं A2 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं A2 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं. तो A2 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं काउंटर क्लॉकवाइज. सो ये पॉइंट कहीं यहां पर जाएगा. बेसिकली द डिस्टेंस this and this is not going to change. So A1P is going to be same as A1P dash because rotation हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही. सिमिलरली मैं A2 को P dash को A2 के ऊपर रोटेट करूंगा. सो दिस इज A2. ठीक है? सो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा A2. A2 कुछ ना कुछ एंगल है, तो ये P डबल डैश बन गया, P डबल डैश बन गया. एंड सिमिलरली अगर A3 यहां पर है, मान लेते हैं A3 यहां पर है, A3 समवेयर है, तो A3 P डबल डैश को मैं A3 के बाद जब रोटेट करूंगा बाय एन एंगल A3, तो ये बेसिकली कहीं यहां पर चला जाएगा P ट्रिपल डैश. सो पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है. पॉइंट का P डैश यहां पर था और फाइनली P डैश जो है, जो पॉइंट P है, वो अल्टीमेटली यहां पर आ गया. सो ओवरऑल हो क्या रहा है? ठीक है? तो हमें ये तो पता लग गया ऊपर से कि When I say rotation about a point means सिर्फ उसका रोटेशन हो रहा है सेम एंगल, बाय एन एंगल थीटा. बट जब मैं उसी पॉइंट पे 3 रोटेशंस लगाता हूं और 3 रोटेशंस ऐसी हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3, हमें यह भी पता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज 180 डिग्रीज. A1 प्लस A2 प्लस A3 इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो क्या हो रहा है? सो ये पॉइंट है A1 के अबाउट A1 के अबाउट ये एंगल. ठीक है? तो पहले ये A1 से रोटेट किया, फिर ये फर्दर A2 से रोटेट किया, फिर ये फर्दर A3 से रोटेट किया. ठीक है? तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पहुंच गया. कैन आई से जो बेसिकली उसका ओरिएंटेशन है वो 180 डिग्री से चेंज हो गया, क्योंकि वो पहले एक तरह से आई कैन से दैट कि अगर मैं ये वाला पोजीशन देखता हूं, सो दिस इज A1, फर्दर ये A2 से रोटेट हुआ, फर्दर ये A3 से रोटेट, तो ओवरऑल 180 डिग्री से रोटेट हुआ. सो ओवरऑल पॉइंट हैज बीन रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द पॉइंट. जब मैं तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो ऑफ कोर्स एंगल थीटा से रोटेट होगा. लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो दिस इज लेट्स से पॉइंट A1, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट PQ. ये लाइन सेगमेंट है. इसमें देखते हैं क्या हो रहा है. तो जब मैं
इस लाइन सेगमेंट को मैं टाउ 1 लगाता हूं. टाउ 1 मतलब द एंटायर थिंग इज बीइंग रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट A1 बाय एन एंगल A1. बाय एन एंगल A1. ठीक है. तो कैन आई से व्हाट इज हैपनिंग कि पूरी की पूरी चीज A1 एंगल से रोटेट हो जाएगी. तो अगर ये P है तो ये P डैश बन जाएगा. ये Q है तो यहां पर कहीं Q डैश बन जाएगा. Q डैश बन जाएगा. Q1 या this angle is A1 and similarly this angle is A1 because सब कुछ A1 से रोटेट हो रहा है. Also AP is same as A1 P1 and AQ is same as A1 Q1. ठीक है. डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे बिकॉज डिस्टेंसेस A के अबाउट तो सेम ही रहेंगे. ठीक है. एंड ओवरऑल कैन आई से ये जो दो ट्राइंगल्स हैं A1 PQ and A1 P1 Q1 they are going to be congruent to each other. Triangle A1 PQ and triangle A1 P1 Q1 are going to be congruent because सारी लेंस मेंटेन है, एंगल मेंटेन है. So I can say that PQ is also equal to P1 Q1. So basically the distance between 2 points is never going to change with any rotation, any transformation. The distance is always going to be preserved. Distance हमेशा preserved रहेगा. तो PQ जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं अगर ये इनिशियल लाइन थी PQ की एंड ये फाइनल लाइन है तो दिस एंगल, दिस चेंज ऑफ एंगल ये A1 का हुआ है. ये जो एंगल चेंज हुआ है ये A1 का हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बिकॉज पहले ओरिएंटेशन अगर ऐसी थी अब वो A1 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो गया. सो लाइन सेगमेंट बेसिकली चेंजेस इज ओरिएंटेशन बाय A1 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, इसी पे अगर मैं दोबारा से टॉ 2 लगाता हूं, टॉ 2 मतलब देयर इज सम पॉइंट A2 इसके अबाउट. अब इसके अबाउट दोबारा से क्या होगा, द PQ का ओरिएंटेशन है दैट इज अगेन गोइंग टू चेंज बाय A2. ठीक है. सो PQ का जो नया ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा. ये जो एंगल है वो A2 हो जाएगा. ठीक है. तो ये कहीं P2 Q2 आ जाएगा. एंड सिमिलरली जब मैं दोबारा से टाउ 3 लगाता हूं, टाउ 3 मतलब एंगल रोटेशन अबाउट A3. सो दिस इज ऑलवेज एंड अगेन गोइंग टू चेंज. This is again going to change by an angle A3. By an angle A3 further. ठीक है. इसको मैं हटा देता हूं. This is again going to change by an angle A3. A3 दोबारा से आ गया. एंड हमें पता है कि A1 plus A2 plus A3 A1 plus A2 plus A3 ये है एक्चुअली में 180 डिग्रीज. A1 plus A2 plus A3 is actually 180 degrees because this is some of the angles of a triangle. तो ओवरऑल ओरिएंटेशन, लाइन का ओरिएंटेशन क्या हुआ? सो लाइन पहले अगर इस ओरिएंटेशन पे थी अब वो 180 डिग्री पे घूम जाएगी. सो बेसिकली अगर लाइन PQ है, फाइनल यहां पर P आएगा, यहां पे Q आएगा. सो डायरेक्शन ऑफ कोर्स एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी. अगर डायरेक्शन PQ की ये थी, दिस विल बिकम रिवर्स. एंड द फाइनल लाइन जो लेट्स से P डैश Q डैश है या P3 Q3 है, फाइनल लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू PQ. 3 ओरिएंटेशंस के बाद. तो एक के बाद तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू चेंज बाय एंगल A1, बट 3 के बाद A1 प्लस A2 प्लस A3 इज 180 डिग्रीज. तो PQ जो लाइन है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री घूम जाएगी. डायरेक्शन इज गोइंग टू गेट रिवर्स. ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, राइट? सो दिस वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अ लाइन? लाइन को क्या होगा? सो कि लाइन, अगर लाइन सेगमेंट हमने एनालाइज कर, तो लाइन बहुत ही सिंपल एनालाइज करना. सो पॉइंट P है या पॉइंट A1 है, लेट्स से दिस इज अ लाइन. सो डिफरेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड लाइन इज इनफाइनाइट. तो लाइन है, तो अगर मैं इस लाइन को A1 एंगल से चेंज करता हूं, सो बेसिकली कुछ नहीं होगा. द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी ये A1 से ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाएगा. ठीक है. A1 से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. अगर लाइन L है ये L1 बन जाएगी. दोबारा से अगर मैं यहां पे इसी लाइन को A2 से चेंज करता हूं, इफ आई चेंज द सेम लाइन बाय A2, सो ये फर्दर A2 से चेंज हो जाएगी एंड फर्दर A3 से चेंज हो जाएगी. सिंस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आई नो दैट लाइन एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी. सो फाइनल लाइन L3 जो होगी दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू L. ठीक है. लाइन सेगमेंट में क्या हो, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्शन होती है, लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं होती बिकॉज इट इज इनफाइनाइट. सो ओनली थिंग इज फाइनल जो
ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद जो लाइन आएगी दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज a1 plus a2 plus a3 is 180 degrees. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू सर्कल? सर्कल में क्या होगा? सर्कल में क्या होगा ये हम लिखते हैं. सो अगर ये है a1 एंड देयर इज अ सर्कल विच इज प्रेजेंट, तो अगेन सर्कल एज इट इज बोल सकते हैं कि a1 डिग्री से रोटेट हो जाएगा. तो सर्कल, नया सर्कल ये बन जाएगा. तो एग्जैक्टली सब कुछ सारे के सारे पॉइंट्स a1 से चेंज हो जाएंगे. सो एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज गोइंग टू बी ऑन दिस सर्कल. तो शेप सर्कल की जो होगी वो प्रिजर्व रहेगी. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी प्रिजर्व बिकॉज सब कुछ सेम है. सो हर पॉइंट जो यहां पर था इज गोइंग टू चेंज बाय एंगल a1. जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पे वो सारे के सारे एंगल a1 से चेंज हो जाएंगे. ठीक है, एंड अगर 3 बार करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सर्कल एग्जैक्टली 180 डिग्री पे उस तरफ भाग जाएगा. वेरी श्योर अबाउट इट. सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अ सर्कल. द शेप एंड साइज रिमेन्स द सेम. तो यहां पर अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें कि पॉइंट के केस में क्या हुआ, लाइन सेगमेंट के केस में क्या हुआ, लाइन के केस में क्या हुआ, सर्कल के केस में क्या हुआ, तो वन इज द शेप इज प्रिजर्व्ड. 3 रोटेशन के बाद शेप को कुछ नहीं हो रहा. सर्कल फाइनली सर्कल ही रहेगा, लाइन फाइनली लाइन ही रहेगी, वो तो पॉइंट फाइनली पॉइंट ही रहेगा. सेकेंड थिंग विच इज हैपनिंग इज द डिस्टेंसेस आर प्रिजर्व्ड. तो अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से पी क्यू, रोटेशन के बाद, एक रोटेशन के बाद जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. 2 रोटेशन के बाद पी क्यू का डिस्टेंस सेम रहेगा एंड पी क्यू का डिस्टेंस तीसरे रोटेशन के बाद भी सेम रहेगा. तो 3 रोटेशन के बाद डिस्टेंस इज नेवर गोइंग टू चेंज. दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट वी फाउंड. थर्ड, टू अ लाइन, इफ पी क्यू इज द लाइन एंड फाइनल लाइन P1, ये लाइन सेगमेंट, PQ इज द लाइन सेगमेंट, फाइनल लाइन सेगमेंट P1 Q1 है. तो वी नो दैट PQ is going to be parallel to P1 Q1 and direction is, so basically they are parallel to each other or I can say anti parallel to each other. ठीक है, सो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो अगर PQ इस तरफ जा रहा है तो QP इस तरफ जाएगा. फाइनली तीनों आफ्टर 3 ट्रांसफॉर्मेशंस. अभी मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि यार ये किसी भी ऑर्डर में हो, आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट दी ऑर्डर क्या है वो मैं अभी अकाउंट पे नहीं ले रहा. ठीक है, सो दिस इज द अदर थिंग. तो अगर लाइन है या लाइन सेगमेंट है या इवन इफ इट इज लाइन, so final line is going to be always parallel to the initial line because a1 plus a2 plus a3 is 180 degrees. Nothing is going to happen to a circle, so circle का remain radius and shape is going to get preserved. सब कुछ सेम रहेगा. तो ये हमारा रोटेशन इफेक्ट आ गया, हमने इसको एनालाइज कर लिया. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि रोटेशन के अंदर हो क्या रहा है. कि पॉइंट को देख लो, लाइन सेगमेंट को देख लो, डिस्टेंस को देख लो, लाइन को देख लो, व्हाट इज हैपनिंग. तो हमने वो सारा का सारा एनालाइज कर लिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड और एक तरह लिख लिया. ओके, रोटेशन इफेक्ट डन. नाउ गाइस द ऑब्जेक्टिव नाउ इज कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट है P जिससे वो P1 P2 P3 बन रहे हैं, तो वो क्या होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये A1 है, दिस इज A2 काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज A3. लेट्स से कोई भी पॉइंट है P कैन बी इनसाइड, P कैन बी आउटसाइड, डजंट मैटर. तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें, पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखें P1 कैसे आएगा. P1 आएगा, I को 1 पुट करके, सो टाउ 3 ऑफ टाउ 1, टाउ 3 ऑफ टाउ 1 ऑफ टाउ 2 ऑफ P. दिस इज P1. P2 कैसे आएगा. P2 I को 2 पुट करो, टाउ 4 इज सेम एज टाउ 1, सो दिस इज टाउ 1. I को 2 पुट किया, टाउ 2, I को 2 पुट किया, दिस इज टाउ 3 ऑफ P. तो बेसिकली P के जब मैं 3 ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा इस ऑर्डर में, तो P2 आएगा. एंड P3 कैसे आएगा. I को हमने 3 पुट किया, सो टाउ 5 इज सेम एज टाउ 2, सो दिस इज टाउ 2 ऑफ, I को 3 पुट किया, टाउ 3 ऑफ टाउ 1 ऑफ P. So this is how we are obtaining the 3 points P1, P2, P3 from these 3 transformations.
सो ऑफ कोर्स P1 इस ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं और जाएगा, P1 कहीं P2 P3, तो फाइनली एक ट्रायंगल बनेगा P1 P2 P3। उस ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस है वो मुझे बताना है कि दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम उसका रेडियस इसके सरकम रेडियस के बराबर आएगा अगर ये R है। सो अगेन गाइस मेरे को यहां पर देखना कि यार P से P1 P होगा क्या, वेयर इज गोइंग टू बी P1, P1 लाई कहां करेगा, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बिकॉज P1 की अगर पोजीशन मुझे पता लग गई तो आई थिंक आई एम डन। बिकॉज P1 की अगर पोजीशन पता लग गई सो P2 P3 की वैसी पोजीशन आएंगी एंड मुझे आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल P1 P2 P3। सो आई एम नॉट एबल टू द ऑब्जेक्टिव इज कि P1 क्या होगा, सिर्फ इस पे फोकस कर लो, पहले वाले पे P2 P3 वैसे ही हो जाएंगे। नाउ गाइस यहां पर हमने अभी तक क्या किया, हमने रोटेशन देखी है, वी हैव सीन द रोटेशन इफेक्ट। ठीक है, रोटेशन इफेक्ट हमने देख लिया कि पॉइंट का क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट का क्या बनेगा, लाइन का क्या बनेगा, सर्कल का क्या बनेगा, हमने ये चारों के चारों रोटेशन इफेक्ट देख लिया। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख ली कि ये P से P1 कैसे बनेगा, P से P2 कैसे बनेगा, P से P3 कैसे बनेगा। तो मुझे सिर्फ एक का चाहिए कि P से P1 कैसे बन रहा है। P1 की अगर मुझे कहीं से पोजीशन पता लग जाए, आई थिंक वी विल बी easily able to identify the positions of P2 and P3 only. तो यहां पर अब एक ऑब्जर्वेशन लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि हमने रोटेशन का इफेक्ट देख लिया, हमने क्वेश्चन समझ में ओवरऑल आ गया कि यार करना क्या है, P1 P2 P3 को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे एक और चीज सोचनी है कि यार कोई ऐसी चीज है जो इन तीन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद चेंज नहीं होगी, दैट इज द इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इज समथिंग विच डज नॉट चेंज। सो अगर मैं ये तीनों इफेक्ट लगाता हूं, कोई तीनों इफेक्ट लगाता हूं, लेट्स से P1, दोबारा से लिखता हूं, P1 I को 1 पुट किया इज टाउ 3 ऑफ टाउ 1 ऑफ टाउ 2 ऑफ P। ठीक है, तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। कहीं पे भी P यहां पे कहीं पे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। The idea is there anything which does not change? For example, अगर मैं टाउ टू P लगाता हूं, टाउ टू P से क्या हो रहा है, एक पॉइंट है वो A2 एंगल से रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, A2 एंगल से रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर एक मैं इसका इनसर्कल बनाऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, A1 A2 A3, A1 A2 A3, लेट्स से दिस इज D, दिस इज E and this is F, the contact circle, the point of contact. P जो था यहाँ P1 दोबारा से लिख रहा हूं, is tau 3 of tau 1 of tau 2 of P। ठीक है, सो P1 इस तरीके से मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन A2 के अराउंड हो रही है, फिर A1 के अबाउट, फिर A3 के अबाउट हो रही है। अगर एक कॉन्टैक्ट सर्कल है तो मुझे ये चीज पता है यार, AF is equal to AE, A1F is equal to A1E, A2F is equal to A2D, and this length is equal to this length. This is what I already know. ठीक है, this length is already know, हमें पता है कि ये S minus A, S minus B and so on, ये सारी चीजें रेडी होती हैं हमें। अब गाइस यहां पर देखो, अगर मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन D के अबाउट लगाता हूं, लेट्स से पॉइंट P की जगह मैं D पुट करता हूं, सो टाउ 3 ऑफ टाउ 1 ऑफ टाउ 2 ऑफ D, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, P की जगह अगर मैं पॉइंट D ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट P इज पॉइंट D, सो व्हाट इज हैपनिंग टू पॉइंट D, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो टाउ 3 ऑफ टाउ 1, टाउ 2 ऑफ D लगाता हूं, तो बेसिकली D पॉइंट को A2 के ऊपर रोटेट किया बाय एन एंगल A2, तो कहना से D पॉइंट बेसिकली F पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज टाउ 1 ऑफ F। अब F पॉइंट को मैं रोटेट करता हूं A1 के अबाउट, बिकॉज टाउ 1 इज रोटेशन अबाउट A1 बाय एन एंगल A1 काउंटर क्लॉकवाइज। सो F पॉइंट यहां पहुंच गया, D पॉइंट यहां पहुंचा था, F पॉइंट यहां पहुंचा। सो कहने से टाउ 1 F इज बेसिकली E। अब मुझे E पॉइंट को रोटेट करना है A3 के अबाउट बाय एन एंगल A3। सो कहने से E पॉइंट दोबारा D पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट D। तो अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन D पॉइंट के ऊपर लगाता हूं, D पॉइंट एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि यार A2D और A2F सेम है, A1F एंड A1E सेम है, A3E एंड A3D सेम है। सो D पॉइंट रिमेन्स देयर ओनली, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस
एंड इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा सवाल है. सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं P पॉइंट की जगह, P पॉइंट तो एनी रैंडम पॉइंट है, D पॉइंट पे लगाता हूं, सो D पॉइंट इज गोइंग टू बी देयर ओनली. सो कैन आई से D पॉइंट इज एक्चुअली द इनवेरिएंट. जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाता हूं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए D पॉइंट इज द इनवेरिएंट. लेट्स सी अगर मैं दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन एक और चेक कर लेते हैं. लेट्स से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं. I को अगर मैं 2 पुट करता हूं, सो P2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन. सो P2 वाज एक्चुअली tau 4 is tau 1, so tau 1 of tau 2 of tau 3 of P. ठीक है, सो ये है. नाउ गाइस, अगर मैं tau 3 of P है, tau 3 of P है, तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर मैं P पॉइंट की जगह E पॉइंट लेता हूं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब मैं tau 1 of tau 2 of tau 3 of E पॉइंट लगाते हैं. tau 3 of E, तो बेसिकली E पॉइंट को मैं A3 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, तो tau 3 of E इज गोइंग टू बी D. सो tau 1 of tau 2 of E, tau 3 of E is going to be D. So this is D. tau 2 of D, अब मैं D पॉइंट को A2 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं बाय एंगल A2. So tau 2 of D is going to be F. So this is tau 1 of F. अब F पॉइंट को A1 के अबाउट रोटेट कर रहा हूं बाय एंगल A1. So this is going to be E. So can I say, अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को E पॉइंट पे लगाता हूं तो E पॉइंट एग्जैक्टली सेम आता है. सिमिलरली थर्ड पॉइंट को अगर मैं F के अबाउट रोटेट करूंगा, इट इज गोइंग टू बी F. सो अगेन पहली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए D पॉइंट इज द इनवेरिएंट, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए E पॉइंट इज द इनवेरिएंट, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं को 3 पुट करूंगा, द F पॉइंट इज गोइंग टू बी द इनवेरिएंट. F पॉइंट एग्जैक्टली वहीं पे रहेगा. D पॉइंट इस ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली वहीं पे रहेगा. राइट, सो एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. देखो अब यहां पे हाउ डज इट हेल्प अस. अब ये हमें हेल्प कैसे करेगा. अब यहां पे क्वेश्चन सवाल बहुत ही सिंपल है, मैं इसको इरेज कर देता हूं. इसको भी इरेज कर देते हैं. ओके, सो लेट्स से यहां पर कहीं पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है, इंदर अंदर बाहर ऊपर. P पॉइंट इज एनीवेयर. P पॉइंट इज एनीवेयर. सो P पॉइंट को हम लेट्स से यहां पे डाल देते हैं. P पॉइंट इज समवेयर है. ठीक है, ऑफ कोर्स P पॉइंट का तो P1 बन गया इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बट मुझे पता कि D पॉइंट D पे ही रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. D पॉइंट इसी पे रहेगा D के बाद. तो अगर मैं ये लाइन सेगमेंट PD लेता हूं, इफ आई पिक दिस लाइन सेगमेंट PD, तो यार लाइन सेगमेंट PD का क्या बनेगा इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. हम ये देख चुके हैं कि अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन एक के बाद एक लगाता हूं, इफ आई डू दिस वन बाय वन, सो लाइन सेगमेंट की ओरिएंटेशन रिमेन्स सेम, बेसिकली चेंजेस बाय 180 डिग्रीज. सो फाइनल पॉइंट जो PD है वो क्या बनेगा, P1D. ये तो क्लियर है. आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के P पॉइंट P1 बन जाएगा. D पॉइंट सेम है. हमने देख लिया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पॉइंट D को मैं देखूं तो एग्जैक्टली सेम रहता है, तो P पॉइंट की पोजीशन क्या P1D होगी. दिस इज क्लियर. अच्छा, डिस्टेंस PD इज गोइंग टू बी सेम एज P1D. हमने ये देख लिया कि यार ये रोटेशन हो रही है सिर्फ यहां पे. सो अगर रोटेशन हो रही है तो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस इज नेवर गोइंग टू चेंज. तो जब P पॉइंट है, बेसिकली अगर D पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करता हूं विद DP एज रेडियस, तो P पॉइंट उस सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं होगा. अदर थिंग, द थर्ड थिंग इज PD is going to be parallel to P1D. ये भी हमने देख लिया था कि अगर लाइन सेगमेंट को ऐसे 3 बार रोटेट करता हूं तो बेसिकली अगर ये ओरिएंटेशन है तो यहां पर अब एग्जैक्टली उल्टी ओरिएंटेशन हो जाएगी. लाइन इज गोइंग टू बी समवेयर पैरेलल. बट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि D पॉइंट तो सेम ही है. सो दैट मीन्स PD P1 आर गोइंग टू बी कोलिनियर. सो बेसिकली लाइन PD इज सेम एज लाइन P1D. तो पैरेलल की जगह बेसिकली कोइंसिडेंट ही है. सो PD इज सेम एज P1D. ठीक है, PD इज सेम एज P1D. दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो कैन आई से जो P1 पॉइंट है, सिंस इट इज अदर सेम डिस्टेंस, तो P1 पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड.
So P1 point is going to be somewhere here. PD और P1D सेम है, पैरेलल है. P1D is parallel to PD, so basically they are going to be on the same line. So P point यहां पर आ जाएगा. So basically यहां पर मैंने ये देख लिया कि कोई भी पॉइंट है P on the plane, तो P1 पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे? P1 पॉइंट क्या है? जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है PD, बेसिकली A1 के सामने वाला जो पॉइंट है D, उसको एक्सटेंड कर दो एंड उतना ही डिस्टेंस आगे खींच दो. सो दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी P1. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. सो P1 पॉइंट कैसे मिला? P1 इज नथिंग बट P1 इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ P about D, and normal is the line which is perpendicular to PD. ठीक है. तो अगर ये perpendicular to PD लाइन खींचे तो P1 जो है वो exactly उसका extension है. So PD is same as P1D. I hope this is clear. Very important. Similarly, अगर मुझे ऐसे P point मिल गया, so P2 point कहां पर होगा? Where is going to be P2 point? Where is going to be P2 point? So can I say ये जैसे PE है ऐसे ही इसको आगे एक्सटेंड किया, so this is going to be P2. This distance is going to be same as this. And P3 point कैसे हुआ? P3 point is going to be P3 is going to be this point. PF को हमने आगे एक्सटेंड किया उतना ही. This is going to be P3. This distance is going to be same as this. तो यहां पर ये P1 है. This is P1. Sorry, P3. This is P2 and this is P1. ये आ गया. एंड P इज एनी पॉइंट. P इज एनी पॉइंट. P अगर यहां पे भी होगा तब भी P1 पॉइंट कैसे आएगा? PD को एक्सटेंड कर दो एंड जितना PD होगा उतना ही P1D होगा. P2 कैसे होगा? P2 कैसे होगा? PE को एक्सटेंड कर दो तो जितना PE होगा उतना ही P2E होगा. एंड PF कैसे मिलेगा? PF को एक्सटेंड कर दो, जितना PF होगा उतना ही P3F होगा. आई होप दिस इज क्लियर. राइट. सो on the basis of whatever we had analyzed with respect to the rotation, उसके बेसिस पे हमने ये डिराइव किया कि P1, P2, P3 होंगे कहां? P is any random point. P कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, is any random point. तो this is what we got. So we ultimately got the positions of P1, P2 and P3. In other words, अगर मैं P1, P2, P3 को ज्वाइन करता हूं एंड इसका सर्कम सर्कल की बात करता हूं, सो कहना सही यहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमोथेटी यूज कर सकते हैं. द फैक्ट दैट PD को एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया उतना ही, इसको एक्सटेंड किया इतना ही. सो P1, P2, P3 ट्रायंगल P1, P2, P3 can be obtained from triangle DEF by applying homothety having center at P and सो सेंटर P के अबाउट अगर हम होमोथेटी लगाते हैं एंड ये 2 है तो D पॉइंट P1 पे चला जाएगा, E पॉइंट P2 पे चला जाएगा एंड F पॉइंट P3 पे चला जाएगा. सो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अगर DEF ट्रायंगल DEF का रेडियस स्मॉल r था, सो ट्रायंगल P1, P2, P3 का इन रेडियस इज गोइंग टू बी 2r. It is going to be 2r. So DEF का अगर रेडियस r था, so P1, P2, P3 का सॉरी एक मिनट, DEF का जो सर्कम सर्कल है, DEF का जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r है, बिकॉज अगर ये कैपिटल R है, इफ दिस इज कैपिटल R, इसका रेडियस है स्मॉल r. सो DEF का जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r है. सो P1, P2, P3 का जो सर्कम सर्कल होगा उसका रेडियस 2r होगा, बिकॉज हमने यहां पे 2 से इसको एक्सटेंड किया हुआ है. सो P1, P2, P3, द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3 इज गोइंग टू बी 2 times smaller. And all we need to do is prove that 2r is less than or equal to capital R, and this is, I think, very trivial. Capital R is always greater than or equal to R. इसको भी हम प्रूव कर देते हैं. ठीक है. बट आई होप यहां तक मैं दोबारा से एक बार चीजें रिपीट कर रहा हूं. सो वी गॉट दैट P से P1 कैसे आएगा, तो P से D लाइन डालो, उसको एक्सटेंड करो उतना ही, PD is equal to P1D, because ultimately P1D is going to be parallel to PD. This is what we had obtained using the concept of rotation analysis that we did in the previous slide.
सो P से P1 कैसे आएगा, P से P2 कैसे आएगा, P से P3 कैसे आएगा, दिस इज व्हाट वी हैव गैदर्ड कि P से P2 कैसे आएगा, P से E ज्वाइन करो, E इज द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ A2 एंड उसको एक्सटेंड करो. सो P to E इज गोइंग टू बी सेम एज P एंड P से P3 कैसे आएगा, P से F ज्वाइन करो, उसको एक्सटेंड करो such that PF is equal to P3F. So basically we are applying homothety with center P and by the extension of two units. तो सब कुछ डबल है. सो जो ट्रायंगल DEF के जो साइड लेंस थे, जो ट्रायंगल P1 P2 P3 के जो साइड लेंस होंगे वो डबल हो जाएंगे अल्टीमेटली. सो DEF का जो सर्कम सर्कल था उसका रेडियस स्मॉल आर था, दिस इज द सर्कम सर्कल. सो P1 P2 P3 का जो सर्कम सर्कल होगा उसका radius is going to be 2r, 2 times small r, where r is the end radius of triangle A1, A2, A3. And all we need to do is prove that 2r is less than or equal to r. So again, अब किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं? तो this is very trivial. So we know that r is equal to 4r sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2. ठीक है, जो रेडियस, ये रिलेशन बिटवीन स्मॉलर एंड कैपिटल, एंड दिस कैन आल्सो बी वेरी इजीली प्रूव्ड. साइन A by 2 को हाफ एंगल साइन B by 2 एंड साइन C by 2 के हाफ एंगल फॉर्मूले लगा सकते हैं. सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी गेट. आल्सो गाइज, वी आल्सो नो दैट साइन A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 for any triangle is always less than equal to 1 by 8. Is always less than equal to 1 by 8. तो यहां से sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 क्या आ गया? R by 4R is less than equal to 1 by 8. So clearly R is less than equal to 2R. Sorry, R by 2. So यहां से ये आ गया. And this is what we had to find. Now यहां पर ये कैसे आया? This is again something that we can prove very easily. So to prove in a triangle sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 is less than or equal to 1 by 8. So let's say we assume P to be this expression sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. So 2P multiplying both sides by 2 is 2 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. 2 sin A by 2 sin B by 2. This is cos A minus B by 2 minus cos A plus B by 2 into sin C by 2. Sin C by 2, ये 2P की वैल्यू. A plus B is 180 minus C और pi minus C. Cos pi by 2 minus C by 2, this is sin C by 2. तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं. So 2P is cos of A minus B by 2 minus sin C by 2 multiplied by sin C by 2. So this kind of becomes quadratic in sin C by 2. तो अगर ये quadratic है sin C by 2 में, so can I say sin square C by 2? Sin square C by 2 उधर ले गए minus cos A minus B by 2 sin C by 2 plus 2P is equal to 0. And if we are talking about the real triangle, अगर triangle ABC real है, so can I say इसका discriminant is greater than or equal to 0. इसका D is B square. So cos square A minus B by 2 minus 4 into 2P is greater than or equal to 0. So 8P is less than or equal to this, or P is less than or equal to 1 by 8 times cos square A minus B by 2. So P का वैल्यू जो ये एक्सप्रेशन है ये इससे हमेशा छोटा रहेगा. अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या से 1 by 8 है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 by 8 है. कब है? जब A minus B 0 है और when A is equal to B. तो जब A और B बराबर है then P becomes 1 by 8, otherwise it is always going to be less than 1 by 8. अच्छा, अगर मैं A और B यहां पर रखता हूं ना, if I put A and B here, A और B बराबर है यहां पे रखता हूं, because C is going to be pi minus A minus A by 2, pi minus A minus A. तो यहां से A और B और C बराबर आ जाएंगे. बेसिकली P 1 by 8 कब होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में, विच इज इक्वालिटी वो हमें वैसे भी पता है, sin 30 sin 30 sin 30.
So P का maximum value 1 by 8, this is what we have been able to prove. Sin A by 2 into sin B by 2, sin C by 2, which is P, is always less than or equal to 1 by 8 for a triangle. एक triangle के case में. So this is what we have used. Sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 is less than or equal to 1 by 8. And ये चीज R by 4R होती है. We are able to prove that capital R is greater than or equal to R. This is what we had to prove. The radius of the circumcircle of triangle P1, P2, P3, which is 2R, is at most the radius of tau, which is R. Right, so this was a very beautiful question. बहुत ही प्यारा question था and इसको हमने बहुत ही basic से बहुत ही basic analysis करके solve किया है. I hope you have enjoyed this particular solution. And guys, INMO analysis and cutoffs are going to be out very soon. We're analyzing. We're talking to a lot of our students who've written INMO, and on the basis of what they've done, we'll be taking out the analysis and cutoffs very soon. Also, if you're interested to join the level 8, this is for the aspirants who are appearing, who want to prepare for the next year, next season, that is RMO and INMO. So RMO 2024 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है. दिसंबर से जनवरी में थॉट बिल्डिंग हमने सिर्फ, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव बैच, तो एक उस पे ढलने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन माइंडसेट. तो उस माइंडसेट को डेवलप किया है इन 2 महीनों में, दिसंबर जनवरी में. देयर आर अराउंड 12 क्लासेस विच ऑफ कोर्स यू विल गेट एज रिकॉर्डिंग्स. अप्रैल से करिकुलम स्टार्ट होगा. आरएमओ सेशंस आर गोइंग टू बी देयर, सब्जेक्टिव असाइनमेंट, सब्जेक्टिव टेस्ट. जुलाई अगस्त में वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर आईओक्यूएम, बिकॉज आईओक्यूएम क्लियर करना जरूरी है आरएमओ के लिए. अगस्त सितंबर में आफ्टर आईओक्यूएम अगेन द आरएमओ सेशंस आर गोइंग टू गेट रिज्यूम. अक्टूबर में इट इज गोइंग टू बी आरएमओ कैंप फॉलोड बाय इनमो प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर टू जनवरी. राइट, सो दिस इज अबाउट द कोर्स. राइट, सो लाइव क्लासेस हर रोज होती हैं, हर वीक होती हैं, ट्यूसडेज एंड थर्सडे. So Tuesday and Thursday evening 9 to 10:30 p.m. are going to be live classes throughout the year till this year, the entire year. And additional classes are going to be held in August 24, September 24 and October 2024. And this is about the tests. Since this is a restricted batch, it is not open for everyone. So only the students who have scored minimum 10 or more marks are eligible to be a part of this particular batch. The link is there in the description box. You can fill the form. Or the students who had done level 7 courses, which are IOQM Prime or Daily Dose or Achievers batch, or they were in last year RMO batch with us. Only those students are allowed for this course. And this is the overall detail. दिसंबर जनवरी में थॉट बिल्डिंग सेशंस ये हो चुके हैं ऑलरेडी, 12 सेशंस हो चुके हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. एंड फेब मार्च नो क्लासेस. अप्रैल से आरएमओ सेशन स्टार्ट होंगे. जुलाई अगस्त आईओक्यूएम प्रिपरेशन. सितंबर अक्टूबर दोबारा आरएमओ प्रिपरेशन एंड देन फॉलोड बाय इनमो प्रिपरेशन. Right, so this is about the batch. It is an year-long batch, and if you score 20 or more IOQM score, the batch is free. Otherwise, if you're an internal student, we have put the information on your Telegram groups. And for external students, the price is 13,500 rupees. You can fill the Google form if you're interested. The team is going to get back to you. Thank you guys for this session, for listening to this, and I hope you enjoyed this particular question. Bye all.